ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੀ ਭੱਟਾਂ ਦੀ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜਲਨ ਤੀਰ ਬਿਬਾਸ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਕ ਹੈ, ਤਾਰਕਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ। ਇਹ ਤੇ ਭੱਟ ਨੇ, ਕਵੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਇਹ ਲਓ ਬਸ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਗਏ? ਬਸ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨਿਕੰਮੇ ਚੱਕਰ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ, ਬਹੁਤ ਅਪਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਉਸਨੇ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਸੰਗਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦ ਕੁਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਵੈਮ ਤਾਰਕਿਕ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬੁੱਧੀ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਣਾ, ਘਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਹਦ ਅਕਲ ਸੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਬ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਕਲ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਾਰਡਰ ਹੈ, ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਲੰਘ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੰਘ ਗਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਤੋਂ, ਲੰਘ ਗਏ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਲੰਘ ਗਏ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ, ਇੱਜ਼ਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੋਂ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘੀ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਲੰਘੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ। ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੁਣ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਟੱਪ ਗਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਝਮੇਲਿਆਂ 'ਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੁਣ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰਿਕ ਔਕੜਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਔਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਝਮੇਲੇ ਤੇਰੇ ਜਪ ਤਪ ਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਤੂੰ ਲੰਘ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ। ਸੁਧ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਲੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਾਰ, ਪਰਿਵਾਰ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਤਨਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਨਾਲ ਮੋਹ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਣ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ। ਰੁਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਗੁਰੂ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰਸ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੇ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸੋਚਣੀ ਗਲਤ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। 26 ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਝ ਔਗੁਣ ਸਹਿ ਨਾਹੀ ਦੋਸ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਤੇ ਰੁਕ ਗਏ, ਔਰ ਇਹ ਰੋਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਕਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿਰਦੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਔਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਔਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚਣੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, तो फिर आत्म रस को क्यों कोई नहीं? अगर तू ठीक है तो आनंद क्यों नहीं है? तू ठीक है तो परम प्रकाश क्यों नहीं है? तू ठीक है तो फिर समाधि क्यों नहीं है? तू ठीक है तो तेरा हृदय निर्वैर क्यों नहीं है, निर्मल क्यों नहीं है? तू ठीक है तो दैवी गुणा की दात क्यों नहीं है? तू गलत है।
समाज नूं गलत कह देना, परिवार नूं गलत कह देना, संसार नूं गलत कह देना, सारी दुनिया कह रही है। अपने आप नूं गलत कह देना कदी कदाई कोई आत्मदर्शी भगत कहता है मैं गलत हूं। मुझ अवगुण सह नाही दोष। मैं संबंध भाई गुरदास जी का एक कवित थोड़े सामने रखा। भाई साहब भाई गुरदास जी कहते ने रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। ओंकारेश्वर गुरुद्वारे च किधरे मैं सुना रहा सी, द्रोह ब्राह्मण मैनू रोंदे हुए मिले, कहने ये किसदा पता है, सानू लिखा दो। ये गुरदास जी कौन ने तुसी कह रहे सी। मैं कि गुरु घर दे वेद व्यास ने। कहने लगे वेद व्यास ने, पर कहते की पैने अपने आप को। मैं कहा ठीक नहीं कह रहे, हालांकि उन्होंने दी अखां अश्क बहा सन। कहने लगे इतना ठीक कह रहे ने, सानू अपनियां गलतियां दिखाई दी, इतना ठीक कह रहे हैं। खैर सुनावा थानू। भाई साहब कहते ने रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। ये प्रभु इस तरह का स्वप्न ते मेरे कोल नहीं है। किसी रूप नूं अगे करके मैं तेनों रिझावां। मेरी जात भी उच्ची नहीं है, मैं कुल दा भी उच्चा नहीं। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, एक भी गुण कोई नहीं। गुणा तो भी हीणा, ज्ञान तो भी हीणा। ये किधरे अतकथने ना समझ लेना। हर ओ अभ्यासी, हर ओ जपेश्वर, हर ओ तपेश्वर महसूस करता है जो अज तक रस नहीं बनया तो मैं गलत हाँ। ये ओदी तस्वीर भाई साहब साढ़े सामने रख रहे हैं। बस महापुरखों च ब्रह्म ज्ञानियों च खूबी होंदी है, अपने आप को अगे कर लेंदा। अजे तक समाधि लीन नहीं होया, कोई कथा कीर्तन गुरबाणी गुरुद्वारे गुरु का दोष नहीं, तू दोषी है, तू दोषी। तू अपनी सोचनी तो अगे नहीं जा रही, तेरी सोचनी रोकी जा रही। रूपहीन, कुलहीन, गुणहीन, ज्ञानहीन, शोभाहीन, भागहीन, तपहीन बावरी। हे गुरु मेरे ऐसे भाग भी कोई नहीं, भागा तो भी हीणा, तप तो भी हीणा, कुल तो भी हीणा, गुणा तो भी हीणा, ज्ञान तो भी हीणा। दूसरी पंक्ति, दिष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। तैनू वेख सकां अखां भी कोई नहीं, तैनू सुन सकां मेरे कोल कन भी कोई नहीं। मैं अपने बोल तेरे कन्ना तक पहुंचा सकां मेरे कोल जबान भी कोई नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरे। हाथ भी कोई नहीं, पैर भी कोई नहीं, टुंडा भी हां, लंगड़ा भी। चल सकां पैर भी कोई नहीं, कुछ सेवा कर सकां हाथ भी कोई नहीं। सुन सकां मेरे कोल कन भी कोई नहीं, वेख सकां मेरे कोल अखां भी कोई नहीं। कुछ बोल सकां मेरे कोल जबान भी कोई नहीं। कुछ समझ सकां असलियत नूं मेरे कोल बुद्ध बल भी कोई नहीं। दृष्ट दरसहीन, शब्द सुरतहीन, बुद्ध बलहीन, सूदे हस्त ना पावरी। प्रीतहीन, रीतहीन, भाय भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, बित्तहीन,
कोई नहीं, मर्यादा भी कोई नहीं, रीत भी कोई नहीं, जीवन का ढंग भी कोई नहीं, भावना भी कोई नहीं, श्रद्धा भी कोई नहीं। चित चेते कर सके इस तरह की चेते शक्ति भी कोई नहीं, याद शक्ति भी कोई नहीं, समर्था भी कोई नहीं। कमाल की गल, जो महान ज्ञानी है वो कहता मैं ज्ञान तो ही ना, जो गुणा का सागर है कहता मेरे को कोई गुण नहीं। ऐसा नहीं परिवारक औकड़ा, संसारिक औकड़ा, आर्थिक औकड़ा तो लंघ के जो आया जब तप करके है उसको बहुत कुछ होणगे अनुभव, कुछ है न गुण, पर रस नहीं है। रस ना होने करके उन्होंने सारे गुण औगण दिखाई देंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। प्रीतहीन, रीतहीन, भाय भय प्रतीतहीन, चित्तहीन, वित्तहीन, सहज स्वभाव रे, अंग अंगहीन, धीना धीन प्राचीन लग, चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु तेरी चरण शरण किस तरह प्राप्त होवे। सारे अंग ते मेरे भंग ने, एक अंग थोड़ी भंग है, सारे ही भंग ने। अंग अंग भंग धीना धीन प्राचीन लग। कहते ने रजनी लियाई सी पिंगले नूं, पर पिंगला सी ना, हथ ते है सन, अखां ते है सन, ਕੰਨ ਤੇ है सन, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ बोल ते सकदा सी। भाई साहब कहते हैं अंग अंगहीन धीना धीन प्राचीन लग, चरण शरण कैसे प्राप्त होए रावरी। हे प्रभु सारे ही अंग भंग ने, ना हाथ ने, ना पैर ने, ना अखा ने, ना कन ने, ना जबान है, बुद्ध बल भी कोई नहीं, रो रीति भी मैं नहीं जानता, कोई गुण नहीं है, कोई कुल भी चंगी नहीं है, कोई समझ भी मेरे को नहीं। ये अवस्था किसदी बनती है? जो देखदा आखिरी बॉर्डर, आखिरी हद अकल दी, कहंदा है ऐ अकल, ऐ समझ, तू समाज दियां औकड़ां तो मैनू बचाया, तू आर्थिक औकड़ां दे होंदियां ते मैनू डिगण नहीं दिता, तू संसार दे झमेलियां तो मैनू बचाया, पर रब्बी रास्ते कोई नहीं, अध्यात्मिक रास्ते कोई नहीं, समाधि ते कोई नहीं, वो परम प्रकाश ते कोई नहीं, उस परम स्वरूप की झलक ते कोई नहीं। हुण दुनिया के अवतारी पुरुष की कहते ने, जिस अकल नूं नाल लेके इत्थे तक पहुंचे हैं, अगर सारियां नूं छड्ड के आया तो हुण इस अकल नूं भी छोड़, इस समझ नूं भी छोड़, हुण सुध बुध करते हर लई मेरी इनू भी छोड़। इसनों एक महान आलम गुजरी सदी दा हो गुजरिया, एक महान शायर, मैं अक्सर कहता हुना, पंजाबी दे संत कवि भाई साहब भाई वीर सिंह जी, बंगाली संस्कृत ते ब्रिज भाषा दे संत कवि राविंद्र नाथ टैगोर, उर्दू फारसी दे फकीर शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल। गजब की गल, तीनों समकाली ने होए भी कोई टाइम ने, तिन्हां दियां रचनावां अध्यात्मक तल ते खड़ियां ने, बहुत टुमदियां ने। इकबाल कहंदा है तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है। अकल ते है, अकल दा दम खम ते है तेरे को, जज्बे कोई नहीं, भावना कोई नहीं, दिल नहीं है। तेरे सीने में दम है, दिल नहीं है, तेरा दम गर्म ये महफिल नहीं है। निकल जाओ अकल से आगे के ये नूर चिरागे राह है, मंजिल नहीं है। ये तो एक रस्ते का दीवा सी ते तू दीवे की परिक्रमा करन लग पे, घर नहीं है, रस्ते का चानना सी, तू ये आले दुआले घूमन लग पे।
ਬਹੁਤਾ ਤਾਰਕਿਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਤਰਕ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤਾ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ? ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ? ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਝ ਲੈ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਪਰੇ ਸੁੱਟ। ਨਿਕਲ ਜਾ ਅਕਲ ਸੇ ਆਗੇ ਕਿ ਇਹ ਨੂਰ ਚਿਰਾਗੇ ਰਾਹ ਹੈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ। ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਈਆਂ ਕੁਛ ਅੰਬੀਆਂ, ਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚ ਗਈਆਂ, ਕੁਛ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੀਆਂ। ਗਾਲਣਾ ਨੇ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੋਤਿਆਂ ਨੇ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਵਿਆਂ ਨੇ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੁੱਕੇ ਹੋਏ ਅੰਬ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਟੁੱਕੇ ਹੋਏ, ਟੁੱਕੇ ਕੁਸੰਗਤ ਨੇ ਟੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਰਸ ਨਾਲ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਗੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਬਚ ਗਏ, ਗਾਲਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਤੋਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ, ਕਵਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚੇ। ਕਬੀਰ ਇੱਕ ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਸੰਤ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਾ। ਕਬੀਰ ਫਲ ਲਾਗੇ ਫਲਨ, ਭਾਵੇਂ ਰਸਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਟੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। कबीर फल लागे फलन पाकन लागे आम, जाए पहुंचे खसम के जो बीच ना खाई काम। मालिक दी झोली ते अंब तां पेगा किधरे कवियां तो भी बच जांदा, गालना तो भी बच जांदा, तोतियां तो भी बच जांदा। टुके होए मालिक झोली च नहीं पांदा। भगत कबीर ऐसा कहता है, तेनू जिस तरह जगत दे च भेजिया से इस तरह वापस आ। खैर मुख्तसर में अर्ज करा, अज दा ये पावन पवित्र वाक इहदे च धन गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रभु सिमरन की गल कर रहे ने। उसदे सारे साधन ने कथा कीर्तन सेवा, ये सब साधन ने। सिमरन फल है। तुसी आखोगे सिमरन फल है, हाँ सिमरन जोड़ देंदा, याद ते जोड़ देंदी है। तुद चित आए महा आनंद, चित चेते च आ गया, महा आनंद बन गया। सिमरन ते महा आनंद है। सिमरन कर रहे हैं, सिमरन कर रहे हैं, जो दुखी ने कल्प रहे हैं। प्रभु सिमरन दरबार है, बैठे ते सारे कल्प दे बेचैन। सिमरन ते फल है। तू चित आवे तेरी माया, हे प्रभु ये तेरी बख्शिश है जे तू चेते आ जाए, तू याद आ जाए, क्योंकि तेरी याद ही ते महा आनंद है, तेरी याद ही ते महा रस है, तेरी याद ही ते प्राप्ति। इसनों मैं बयान करदा हुंदा, संबंध सारे यादां दे ने। कोई भैन भरा दे संबंध नहीं आउंदे, कोई मित्र पुत्रां दे संबंध नहीं आउंदे। जो याद आंदा है वो संबंधी है, जिहड़ा बिल्कुल भुल गया कहदा संबंधी है। भुल गया भरा, भुल गया मित्र, भुल गया चाचा ताया, कदी याद ही नहीं आंदा, संबंधी है, साडा खास संबंधी है। कदी याद कीता? याद ते आउंदा ही नहीं। संबंध सारे यादां दे आउंदे। ठीक है, तू दानी होवेगा, ज्ञानी होवेगा, रोज दा सतसंगी होवेगा, सेवा करदा होवेगा, नहीं मनदे तो सिमरन करता होगा। सिमरन ते फल है, याद ते उसदी फल है। सब कुछ इस वास्ते करना है हिरदा सिमरन तक पहुंच जाए, उन्होंने याद करन लग पे। जैसे याद कर दे तुद चित आए महा आनंदा, जिस विसरे सो मर जाए। ओदी याद महा आनंद है, उन्होंने भुल जान नाल मर जाता है। कि मनुख दे गुण मर जाते हैं, मनुख दियां खुशियां मर जांदियां, मनुख दा खेड़ा मर जाता है,
ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੂਝ ਸਮਝ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਦਿਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਆਸਰੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਬੇਆਸਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗਲ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ। ਸਾਰੇ ਗੁਣਾ ਤੇ ਖਾਕ ਪੈ ਜਾएगी अगर वो भूल गए। अगर वो याद आ तो फिर सब कुछ प्राप्त हो गया, सब कुछ प्राप्त हो गया।